گھی اور خوردنی تیل بھی مہنگائی کے طوفان کی زد میں آ گئے۔ نئے ٹیکسی سے فی کلو قیمت 18 روپے تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو تکلیف بھی نہ بڑھائے۔ شہری حکومتی پالیسیز پر پھٹ پڑے۔ آپ ڈفرینٹ کوموڈیٹیز کی پرائز دیکھ لیں، آپ کے سامنے یوٹیلیٹی سٹور پہ تو چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ یہ قیمتیں بڑھا رہی ہے اس چیز کو تو بھائی انہوں نے کم بھی کرنی ہے۔ اگر نہیں کم کرے گی قیمتیں تو بھائی نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا۔ گھی اور آئل کی قیمتوں میں جیسے گورنمنٹ اضافہ کر رہی ہے، اس بارے میں سوچنا چاہیے انہیں کہ عام آدمی کہاں جائے گا۔ حکومت سے اپیل ہم کرتے ہیں کہ اشیاء کو سستا کیا جائے اور اس پر لاہے عمل کوئی تیار کیا جائے۔ شہر میں آٹے کے بحران کا خدشہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فلور ملز نے گندم کی پسائی بند کر دی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے چوکر پر عائد سیلز ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فلور ملز نے گندم کی پسائی بند کر دی ہے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے مرحلہ وار فلور ملز بند کرنے کا پلان دیا تھا۔ 24 اور 25 جون کو گندم کی پسائی بند کر کے علامتی ہڑتال کی جا رہی ہے۔ عاصم رضا کے مطابق فلور ملز پر ٹرن اوور ٹیکس اضافے کو واپس لیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم گندم کے چوکر پر 17% سیلز ٹیکس کا فیصلہ بھی فوراً واپس لیا جائے۔ ہمارا اس ٹوکن علامتی ہڑتال کا مقصد صرف اپنے سٹینڈز کو کہ جو ٹرن اوور ٹیکس 0.25 سے بڑھ کے 1.25 ہوا تھا اور اس کے ساتھ جی ایس ٹی 17% چوکر پہ لگایا جا رہا تھا، اس کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانا تھا یا اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب تک پہنچانا تھا۔ شہر میں چینی کی ہول سیل تجارت کا مرکز بابر سینٹر ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق فیصلہ ایف آئی اے کے ناروا سلوک کی بنا پر کیا گیا۔ شوگر ڈیلرز کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک قابل قبول نہیں ہے۔ تاجروں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، رات کو 12 بجے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ایف آئی اے کی طرف سے کافی زیادتی ہوئی، تو ان لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اب وہ اس کام میں نہیں آئیں گے اور اس کو مستقل طور پہ بند کر دیں گے۔ اگر حقائق پہ مبنی ریٹ رکھے جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ ایسا وقت دیکھنا پڑتا۔ آج بھی چینی جو ہے 94-95 سے کم نہیں بک رہی۔ تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی تعطیلات 2 جولائی سے 1 اگست تک سکول بند رکھنے کی تجویز زیر غور ہے۔ چھٹیوں کا حتمی فیصلہ این سی او سی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ تعلیمی اداروں کو گرمیوں کی تعطیلات کے سلسلے میں 2 جولائی سے 1 اگست تک بند رکھنے کی تجویز زیر غور ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے گرمیوں کی تعطیلات کے حوالے سے صوبائی وزیر تعلیم کو آگاہ کر دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم چھٹیوں کے حوالے سے این سی او سی میں اپنی سفارشات پیش کریں گے۔ چھٹیوں کا حتمی فیصلہ این سی او سی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ کورونا وائرس کے حملوں میں کمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 86 نئے مریضوں کی تصدیق، 6 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ہسپتالوں میں مجموعی طور پر 233 افراد زیر علاج ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں کمی سے ہسپتالوں کے آئی سی یوز میں 77% بیڈز خالی ہو گئے۔ کورونا وائرس کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ دم توڑ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 86 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ شہر میں مزید 6 اموات رپورٹ ہوئی۔ اسپتال میں مجموعی طور پر 233 افراد زیر علاج ہیں۔ سرکاری اسپتال میں 200 اور نجی اسپتال میں 33 افراد زیر علاج ہیں۔ 59 تشویشناک مریض وینٹیلیٹرز پر زیر علاج ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں کمی سے اسپتالوں کے آئی سی یوز میں 77% بیڈز خالی ہو گئے ہیں۔ پنجاب کا اگلے مالی سال کا 2528 ارب کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحریکیں مسترد کر دی گئیں۔ فائنانس بل منظوری کے لیے کل پیش ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کا بجٹ منظور کیا گیا۔ اپوزیشن کی 40 کٹوتی کی تحریکوں کو مسترد کر دیا گیا۔ بجٹ منظور ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ اور اراکین اسمبلی کو مبارکباد دی۔ اس سے پہلے کٹوتی کی تحریک پر بحث کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا کہ حکومت نے تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا۔ وزیر تعلیم مراد راس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت ان پڑھ پنجاب چھوڑ کر گئی۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ بچے جاہل رہ جائیں، کیونکہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد ان لوگوں کو ووٹ کس نے دینا تھا۔ وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے کہا کہ سابق حکومت نے 2004 میں یو ای ٹی پروگرام منظوری دی، لیکن اس پر کام ہی نہیں کیا۔ ہم نئی یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر اسمبلی نے اجلاس جمعے کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی کامیاب حکمت عملی اپوزیشن منہ تکتی رہ گئی اور حکومت نے بجٹ بغیر کسی مزاحمت کے منظور کروا لیا۔ بجٹ کی منظوری کے وقت نون لیگ کے 165 میں سے صرف 16 اراکین اور پیپلز پارٹی کا ایک بھی رکن ایوان میں موجود ہی نہیں تھا۔
अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के अपने ही दावों के बोझ तले दब गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की कामयाब हिकमत अमली के बाइस पंजाब का अगले माली साल का बजट बगैर किसी मुज़ाहमत के मंजूर कर लिया गया। बजट की मंजूरी के वक्त ऐवान में हुकूमती बेंचों के 181 में से 96 अरकान मौजूद थे। भारी भरकम अपोजिशन के सिर्फ चंद अरकान ही ऐवान में नजर आए। मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में 165 अरकान हैं, जबकि बजट की मंजूरी के वक्त नून लीग के सिर्फ 16 अरकान ऐवान में थे। इनकी जानिब से बराए नाम मुज़ाहमत भी देखने में नहीं आई, जबकि पीपल पार्टी के 7 अरकान में से एक भी रुकन ऐवान में नहीं था। पंजाब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से इजाफी गाड़ियां वापस लेने का फैसला कर लिया गया। वजीर आला पंजाब ने अफसरान के जेर इस्तेमाल 30 गाड़ियां फौरी तौर पर वापस लेने की हिदायत जारी की हैं। पंजाब हुकूमत ने काबीना इजलास में फैसला किया था कि जिन अफसरान के पास इजाफी सरकारी गाड़ियां जेरे इस्तेमाल हैं वो उनसे वापस ली जाएं, लेकिन इस पर अमल दरामद न हो सका। काबीना के इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी का कहना था कि मुतअद्दिद महकमों और अफसरान की जानिब से 30 गाड़ियां अभी तक वापस नहीं की गयी, जिस पर वजीर आला पंजाब ने उन्हें हिदायत दी कि वो अफसरान से गाड़ियां वापस लें। ट्रांसपोर्ट विंग की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक DC लाहौर, PHA, महकमा ज़राअत, महकमा हाउसिंग, DG PHA फैसल आबाद के ऑफिसर से इजाफी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। साफ पानी कंपनी की 10 गाड़ियां भी ट्रांसपोर्ट विंग को वापस करने का हुक्म दिया गया। महकमा आपाशी, लाइफ स्टॉक, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, महकमा तवानाई और PKLI को भी इजाफी गाड़ियां वापस करने का हुक्म दिया गया है। शहर में बिला तातुल गैस फराहमी का मेगा प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। सुई नदरन गैस कंपनी ने 4 अरब रुपए की लागत से 70 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछा ली। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी 4 अरब रुपए की लागत से गैस पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा 3 हिस्सों में मुकम्मल कर रही है। फूलनगर से फिरोजपुर रोड तक 48 किलोमीटर की 24 इंच की लाइन बिछाई जाएगी। फिरोजपुर रोड से बरकी रोड 27 किलोमीटर से 16 इंच की लाइन बिछाई जाएगी, जबकि बरकी रोड से BRB तक 2.5 किलोमीटर लाइन बिछाने का काम जारी है। SNGPL बरकी रोड पर नया सेल्स मीटर स्टेशन तामीर करेगी। मंसूबे के तहत लाहौर को 2 की बजाय 4 मुकामात से गैस दी जाएगी और आइंदा मौसम सरमा में कहीं गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। लाहौर में तालीम का हुसूल भी महंगा हो गया। लाहौर शहर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का गढ़ है। शहर में सरकारी यूनिवर्सिटीज की तादाद प्राइवेट से भी कम रह गई। ऐवान वजीर आला को निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों की तादाद बारे एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक लाहौर शहर में सरकारी यूनिवर्सिटियों की तादाद 13 और प्राइवेट की 20 है। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन के ऐवान वजीर आला को पेश करदा सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटियों की तादाद कम होने पर तलबा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की भारी भरकम फीसें देने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब पंजाब भर में सरकारी यूनिवर्सिटियों की तादाद 45 है, जिनमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तादाद 28, जबकि लाहौर में सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तादाद है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के दीगर इजला में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तादाद सिर्फ 8 है और पंजाब के 18 इजला ऐसे भी हैं जहां कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं। SHOs ने थानों में अपनी अदालतें लगा ली। नाकाबिले जमानत जुराइम में भी मुल्जिमान को रिहाई देने लगे हैं। सेशन जज ने कैंट की हुदूद के 15 SHOs को 30 जून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन संदर की अदालत में बाबर अली एडवोकेट ने दरख्वास्त दी कि कैंट के 15 थानों के SHOs ने थानों के अंदर अदालतें लगा रखी हैं। नाकाबिले जमानत जुराइम पर भी SHOs मुल्जिमान की जमानतें लेकर छोड़ रहे हैं। मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर बाकायदा मजिस्ट्रेट दस्तखत करता है। अदालत में थानों की फहरिस्त भी पेश की गई। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की MRI मशीन खराब। मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। टाइम लेने के बावजूद दूर दराज से आने वाले ख्वार होकर रह गए। मैं यार कराने वास्ते आया, लेकिन इन्हें कोई मशीन नहीं है। असं हूँ मरीज लैके कितने जाइए? मैं यार मशीन इतने खराब है। मशीन तो शेखपुरे तो आया, मरीज साडा खज्जल हो गया। दसो असी किहड़े पासे जाइए? फैसलाबाद से आया, हमारा मरीज लेकर सर्विस हॉस्पिटल में। वो उन्होंने हमारी मशीन खराब है, कम से कम 6 महीने का टाइम देते हैं। उससे पहले ये मरीज को पकड़ते भी नहीं है। हॉस्पिटल आए हैं, कोई इतने सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तो मरीज खज्जल खुआर हो रहे हैं। यार जो उनकी मशीन है वो ठीक ही नहीं है, खराब हो जाती है। 6 महीने का हमें टाइम मिलता है, लिहाजा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA में पेशी। हमजा शहबाज से 5 रुकनी टीम ने 1 घंटे तक तफ्तीश की।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के सामने पेश हुए। लीगी कारकुन उनसे इजहार यकजहती के लिए कसीर तादाद में FIA ऑफिस के बाहर मौजूद थे। हमजा शरीफ से FIA की 5 रुकनी टीम ने 1 घंटे तक तफ्तीश की। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 25 अरब के फ्रॉड का इल्जाम है। FIA ने इससे कबल कोर्ट लखपत जेल में हमजा शहबाज से तफ्तीश की थी, ताहम वो FIA को मुतमईन नहीं कर सके थे। तर्जुमान नून लीग अता तारर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहजाद अकबर को पहले की तरह इस बार भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब हमने दिया है शहबाज शरीफ साहब किसी शुगर मिल में ना डायरेक्टर हैं, ना शेयर होल्डर हैं, ना मैनेजमेंट में हैं, ना CFO हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल नहीं पैदा होता। ये तोता मैना की कहानी, ये झूठ का पलंदा, इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये एक खड़ी गई कहानी है शहजाद अकबर की तरफ से इमरान नियाजी को खुश करने। हमजा शहबाज की FIA पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। इरफान मलिक, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जमानत पर रिहाई का परवाना जारी। ख्वाजा आसिफ जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। मुआलिजीन ने मजीद 2 से 3 रोज अस्पताल में रहने का मशवरा दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को 5 माह 26 दिन बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। नून लीग सियालकोट के रहनुमा मियां अशफाक की जानिब से एहतसाब अदालत में 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराए गए। अदालत ने मचलकों की तस्दीक के बाद रिहाई की रोबकार जारी कर दी। ख्वाजा आसिफ को नैब ने आमदन से जायद असासा बनाने के इल्जाम में 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। ख्वाजा आसिफ की रिहाई का परवाना जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां वो आंखों के इलाज के लिए दाखिल हैं। ख्वाजा आसिफ के मुआलिजीन ने उन्हें अस्पताल में मजीद 2 से 3 रोज रहने का मशवरा दिया है। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि PDM का इकट्ठ बिखर चुका है। हम एक पेज पर हैं और एक रहेंगे। पंजाब असम्बली में दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बजट इजलास, वर्किंग रिलेशन और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के वफ्द का बाग़े जिना का दौरा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कायदे आज़म लाइब्रेरी और सदियों पुराने दरख्तों और तारीखी मुकामात को देखा और सराहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के वफ्द ने बाग़े जिना का दौरा किया। वफ्द में डॉक्टर जेफरी शॉ, मिसेस डॉक्टर जेफरी, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन सिफारती अमले के ओहदेदारान और पॉलिसी ऑफिसर शामिल थे। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म आयशा, टूरिज्म इंचार्ज वॉल सिटी मोहम्मद जावेद ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के वफ्द को बाग़े जिना का दौरा करवाया। अमरीकी कमर्शियल काउंसलर जॉन का पंजाब सरमायाकारी बोर्ड ऑफिस का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अरफा इकबाल ने मुलाकात की। मुआशी ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी सिफारत खाने में तैनात कांस्टेबल बराए मुआशी अमूर जॉन कोरोनाडो ने सरबराह बराए मुआशी सेक्टर सिल्वाडोर और कमर्शियल स्पेशलिस्ट हसन रजा के हमरा पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी और तिजारत का दौरा किया और सरमायाकारी बोर्ड की सरबराह डॉक्टर अरफा इकबाल से भी मुलाकात की। जॉन कोरोनाडो ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अरफा इकबाल का कहना था कि बाहमी ताउन में इजाफे के लिए राब्ते बढ़ाना होंगे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।